morning, everybody. Good morning. My blessings always there with all of you. Morning. Good morning. Good morning. God bless. I'm good. Thank you. Good morning. Good morning. Good morning, everybody. Good morning. Good morning. God bless. Good morning. Good morning, everybody. Good morning. चलिए शुरू करें. Okay, let's start today's BNSS. In my previous lecture, we were discussing about a very important section, which was the erstwhile 313 CRPC. And we discussed all the aspects, which is now section 351 of BNSS. We saw all the aspects of 313, how 313 will be, how it can be at two times, at two parts, it can be divided at once, at any point of the trial or even inquiry. And one which is shall, जब वो खत्म हो जाएगा उसके बाद prosecution evidence के बाद he has to, he shall. We saw various aspects and we saw many judgments on this, the evidentiary value, and many other aspects of the entire. We then went on to read the following sections. The next section, 352, dealt with the oral, after once oral arguments are over, then the detailed, the sum up has to be done and then given in writing. कोई भी अगर oral arguments होते हैं उनको sum up करके we have to give a writing and give a copy to the opposite party also. We then went on to read a very important section हमने discuss किया था 353, accused is a competent witness. We have also seen it in context of the Indian Evidence Act कि accused हमेशा एक competent witness होता है क्योंकि competency का base है he should be able to understand the question put to him and give a coherent reply. So it is immaterial whether he is accused or not. It will be taken that he is a competent witness. We then read last time section 354, which was reminiscent of section 24 of Evidence Act, that no undue influence should be given to the accused, no threat, no promise, no undue promise, etc., which corresponded to section 316. We covered this also in my last lecture. And then we had reached section 355. हमने यहाँ तक कवर किया था सारा. I hope all of you are clear and are making your notes. क्योंकि you know always remember कि जो हमारा procedure होता है वो base होता है. तो चाहे CPC हो चाहे CRPC हो, evidence हो. जिनको इन तीन की मास्टरी नहीं होती वो वकील भी कभी अच्छा नहीं बन सकता. Because this is the base. इन्हीं के मुताबिक आपने चलना है. Substantive law में आ जाता है पर फिर उसको apply कैसे करना है वो important होता है. Anyways, now actually we had read this section 317 जो था पुराना, जो अब ये 355 है. ये basically एक general section है. If you remember हमने पहले section 205 जब CRPC कर रहे थे तो हमने देखा था कि अगर जज चाहे तो ट्रायल में पर्सनल अटेंडेंस माफ कर सकता है.
इसीलिए ये वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक जनरल सेक्शन है. दिस इज अ जनरल सेक्शन. व्हेन आई से जनरल सेक्शन, व्हाट डज इट मीन? वो था स्पेसिफिकली उस पॉइंट को देखते हुए. ये जनरल प्रोविजंस में है, यानी कि कभी भी कोर्ट चाहे तो एग्जेम्पशन दे सकता है एक्यूज्ड को. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? बिकॉज हमने पढ़ा था कि अगर एक्यूज प्रेजेंट नहीं है तो ट्रायल वैलिड नहीं है क्रिमिनल लॉ में. तो अब अगर एक्यूज नहीं है, देन इन दैट केस कैन द कोर्ट अलाउ, बिकॉज एक ट्रायल एक्यूज के बिना इनवैलिड है, तो क्या एक्यूज को हम अलाउ कर सकते हैं दैट यू डू नॉट कम, दैट मींस वी गिव हिम दिस बेनिफिट एंड यू कैन अपीयर थ्रू योर प्लीडर. उसका जनरल सेक्शन ये है. तो जो हमने पहले 205 सीआरपीसी पढ़ा था, वो एक स्पेसिफिक मैटर को लेके था. अब ये जनरल सेक्शन है वही चीज, पर अब ये जनरल चीजों को डील करता है. यानी कभी भी अगर हमें जिंदगी में मांगना है एग्जेम्पशन कोई एक्यूज का, तो हमें इस सेक्शन में जाना है. एट एनी स्टेज ऑफ एन इंक्वायरी, सो विच मीन्स प्री ट्रायल भी कवर होता है. एट एनी स्टेज ऑफ एन इंक्वायरी और ट्रायल अंडर दिस कोड, if the judge or magistrate is satisfied for reasons to be recorded. So please remember, because opposition, I mean prosecution may go in revision, so isliye you must give in writing the reasons. That the personal attendance of the accused before the court is not necessary in the interests of justice. This is the most important aspect, that his presence is not necessary in the interest of justice, or that the accused persistently disturbs the proceedings in the court. अब ये एक और चीज है, ये क्वेश्चन आपके इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि सपोज आपको कोई बड़ा बदतमीज टाइप एक्यूज मिल जाए और वो बार बार तंग करता है, डिस्टर्ब करता है, ऊंचा ऊंचा बोलता है. डिस्टर्ब तो हजार तरीके से हो सकता है. व्हाट विल यू डू? वो यही एक सेक्शन है जो इसका आंसर है. In such cases, the judge or the magistrate may, if the accused is represented by a pleader, dispense with his attendance. तो अगर उसका प्लीडर है तो आप एक्यूज को कह सकते हो कि कल से तू नहीं आएगा, and proceed such inquiry or trial in his absence, and may at any subsequent stage of the proceedings direct the personal attendance of such accused. और बाद में जब भी उसकी जरूरत हो, जैसे हमने डिसीजन देना है, सेंटेंस देना है, तो बुला सकते हैं उसको. या और भी अगर कहीं जरूरत है, जैसे 313 की जरूरत है, तो भी उसको बुला सकते हैं. If the accused in any such case is not represented by a pleader, or if the judge or magistrate considers his personal attendance necessary, he may, if he thinks fit, and for reasons to be recorded by him, either adjourn such inquiry or trial, or order that the case of such accused be taken up or tried separately. So रोक सकता है कार्रवाई कि जब तक ये सुधरेगा नहीं, ये हम रोक रहेगा. या फिर इस एक्यूज को अलग, बाकी एक्यूज से अलग लेके अलग ट्रायल चला देंगे. सो दीज आर द प्रोविजंस व्हिच आर अवेलेबल. ये जनरल प्रोविजंस हैं, और इसलिए जैसा कि मैंने बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं कि जहां पे कोई एक्यूज आपको बोले कि आई वांट टू हैव द बेनिफिट ऑफ बीइंग एग्जेम्प्टेड, या फिर वो तंग कर रहा हो, सो एट द बिहेस्ट ऑफ द एक्यूज्ड, एंड सेकंड एट द बिहेस्ट ऑफ द कोर्ट, कि कोर्ट कहता है कि ये बहुत ही तंग करता है, तो फिर आप क्या करोगे? फिर ये कार्रवाई दी गई है. पिछली बार मैंने आपको डिस्कस किया था, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी दिया था कि किन केसेस में ये एग्जेम्पशन देना चाहिए. सो आई होप यू रिमेंबर दैट. वो सेम लॉ है वहां भी. सो किन किन मामलों में एग्जेम्पशन देना चाहिए, किन में नहीं देना चाहिए. There was a Supreme, in fact, there are more than one Supreme Court judgments, and I already discussed the more important landmark one. We now go on to Section 318 CRPC. Now, before I go to 318, there is a new section which has been added. Section 356. ये नया सेक्शन है, ये सीआरपीसी में नहीं था.
इसको बहुत ध्यान से करना, ये एक नया सेक्शन है, बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इसकी बहुत वैल्यू होगी आगे जाके, आई कैन सी। This specifically deals with proclaimed offenders. Can a trial continue with a person who's absent? In other words, if we have declared him as a proclaimed offender, क्या उसके खिलाफ हम कार्रवाई चला सकते हैं? So ये complete question आ सकता है मेंस में, so बहुत ध्यान रखिएगा. This is one question which I am sure will be very useful, not only in your courts but even in your exams. Now, this whole section, firstly, is an exception to the entire law laid down by CRPC. तो ये सेक्शन ही एक चीज, तो पहली बात ये एक्सेप्शन है. क्यों एक्सेप्शन है? लेट्स सी. नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस संहिता. So in other words, this is an exception, or in any other law for the time being in force. When a person declared as a proclaimed offender, whether or not charged jointly, so चाहे वो अकेला है चाहे औरों के साथ है, has absconded to evade trial. So abscond कर गया है ट्रायल से बचने के लिए. And there is no immediate prospect of arresting him. और लग भी न रहा कि जल्दी गिरफ्तार होगा. It shall be deemed to operate as a waiver of the right of such person to be present and tried in person. इसलिए एक्सेप्शन है. आप पीओ घोषित हो गए. अब यहां प्लीज रिमेंबर, अब प्रोक्लेमेशन नहीं लिखा है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर लिखा है. सो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का हम देख चुके हैं, जिनकी सजा 10 साल से ऊपर है. सो उनको अगर अब वो गायब होते हैं, तो जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल है कि नो ट्रायल कैन टेक प्लेस विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड, उसका एक्सेप्शन है. ये अब डीम प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है कि he has deemed to waive off his right to be present during the trial. And the court shall, after recording reasons in writing, in the interest of justice, proceed with the trial in the like manner and with like effect as if he was present, and pronounce the judgment. बहुत ही फार रीचिंग इफेक्ट्स होंगे इसके. कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, उसकी एब्सेंस में जजमेंट दे दिया जाएगा. वो एक बार भी नहीं आया, उसने एक भी क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया. सो दिस इज अ पाथ ब्रेकिंग सेक्शन, आई मस्ट से. ये लेजिस्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. नहीं तो बेसिकली जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जूरिस्प्रूडेंस के, सारे तोड़ दिए उसने. कि अगर कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है और पता नहीं लगता है कि नहीं पकड़ा जाएगा, ट्रायल शुरू हो जाएगा. हर एग्जामिनेशन, हर एविडेंस माना जाएगा क्रॉस एग्जामिन हो गया, और जिसको हम कह सकते हैं एक्स पार्टे प्रोसीडिंग्स. तो क्रिमिनल लॉ में एक्स पार्टे प्रोसीडिंग्स नाम की कोई चीज नहीं होती, पर यहां ये एक्सेप्शन है. पहली बार हमें कोई एक्स पार्टे प्रोसीडिंग नाम की चीज मिल रही है. इसको ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूं, ये एग्जाम्स में पक्का आएगा, ध्यान रखना. सो दिस विल बी व्हाट आई विल कॉल एन एक्स पार्टे जजमेंट. It is akin to what I call an ex parte judgment. तो क्वेश्चन ये आ सकता है, कैन एन एक्स पार्टे जजमेंट बी गिवन? इफ सो, अंडर व्हाट कंडीशंस? ये नया सेक्शन है, पहले कहीं नहीं था. तो ये कह सकता हूं कि ये रेवोल्यूशनरी एक लेजिस्लेशन है. Provided that the court shall not commence the trial unless a period of 90 days has lapsed
फ्रॉम द डेट ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। तो चार्ज फ्रेम कर देंगे, उसके बाद 90 दिन तक हम विटनेस नहीं लाएंगे, हम 90 दिन का टाइम देंगे इसको टू बी प्रेजेंट। अब क्योंकि ये इतना ज्यादा नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है और पूरे क्रिमिनल लॉ का एक्सेप्शन है, इसीलिए सेफ गार्ड दे रहे हैं सबसेक्शन 2 में। द कोर्ट शैल इंश्योर that the following procedure has been complied with before proceeding under subsection 1, namely, पहला, issuance of 2 consecutive warrants of arrest within the interval of at least 30 days। यानी 30 दिन के अंदर अंदर आप 2 बार अरेस्ट वारंट भेजोगे। अब वो अरेस्ट वारंट अगर आ गया फिर तो बात ही खत्म, फिर तो अरेस्ट करके ले आएंगे। बाई चांस नहीं आता तो देन ऑफ कोर्स हमारी कार्रवाई चलेगी। B. Second, publish in a national or local daily newspaper circulating in the place of his last known address and residence, requiring the PO to appear before the court for trial and informing him that in case he fails to appear within 30 days from the date of such publication, the trial shall commence in his absence। कोई भी लोकल न्यूज़पेपर में, डेली में या नेशनल में, जो भी वहां चलन होता है जिस चीज का, उसमें एक हम ये ऐड डालेंगे उसके लिए कि तुम इमीडिएट आ जाओ, ये जिस दिन आज पब्लिकेशन हुआ है 1 महीने का टाइम दे रहे हैं कि तुम कोर्ट में सरेंडर करो, अगर नहीं करते तो तुम्हारे खिलाफ ट्रायल शुरू हो जाएगा, एक्स पार्टे ट्रायल शुरू हो जाएगा। थर्ड, inform his relative or friend if any about the commencement of the trial। तो जो भी उसका रिलेटिव है, उसके माँ बाप हैं या दोस्त हैं, अगर सब, उसको इन्फॉर्म करेंगे कि अब ट्रायल शुरू होने वाला है उसकी एब्सेंस में। 4, affix information about the commencement of the trial on some conspicuous part of the house or homestead in which such person ordinarily resides and display in the police station of the district of his last known address of residence। और चस्पा कर देंगे यही कमेंसमेंट की इंफॉर्मेशन ऑफ द ट्रायल की उसके घर पे एंड उसके कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन में। ये जो 1 2 3 4 हैं ये और नहीं है, ये एंड है सारे, ये चारों इकट्ठे चलाने पड़ेंगे और नहीं है, इसलिए ऑल दीज 4 हैव टू बी रन टुगेदर। नहीं देखो, ये तो है जब हम फ्रेमिंग ऑफ चार्ज करने से पहले, फ्रेमिंग के बाद फिर 90 दिन दे रहे हैं, सो दैट इज व्हाई फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से ही तो ट्रायल शुरू होता है, तो उससे पहले की कार्रवाई है, बिकॉज वंस वी फ्रेम द चार्ज इमीडिएटली द ट्रायल स्टार्ट्स। फिर भी हम ट्रायल को भी रोक रहे हैं 90 दिन, ताकि कल को अब वो कहीं भी ऑन द ग्राउंड ऑफ फंडामेंटल राइट, माय राइट टू लाइफ में चैलेंज नहीं कर सकता। हमने बहुत सेफ गार्ड डाल दिए। ओके, where the proclaimed offender is not represented by any advocate, he shall be provided with an advocate for his defense। लीगल एड दी जाएगी इन केस उसका कोई पाकिस्तानी है सपोज, या कोई और है जिसको कोई वकील आ ही नहीं रहा उसका, या वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा, व्हाटएवर बी द रीजन। इन एनी, दैट मींस एक्स पार्टे टोटली नहीं होगा, उसका वकील तो होगा ही होगा। सो जहां पे ही इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय एनी एडवोकेट, लीगल एड होना जरूरी है। हाँ जी, सिर्फ हमने उसको 2 बार टाइम दिया, एक तो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से पहले हमने ऐड डाल दिया, उसके घर पे चस्पा कर दिया, नहीं आया, हमने अब एक वकील लीगल एड किया, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज किया, 90 दिन वेट किया, फिर ट्रायल शुरू। हाँ जी, वो होगा ही नहीं, देयर विल बी नो पावर ऑफ अटॉर्नी। इसीलिए जो हम कह रहे हैं, हम उसको वार्न कर रहे हैं कि तेरे आए बिना ट्रायल शुरू हो जाएगा और जजमेंट भी आ जाएगी। हाँ, अब क्योंकि उसका वकील नहीं है, इफ ही इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय एनी एडवोकेट मींस कोई आया नहीं, तो अब बिना उसके वकील के तो नहीं हम चलाएंगे,
तो हम ये सेम्बलेंस के लिए कि चलो हम फिर भी हम कर रहे हैं, वी आर डूइंग जस्टिस, हम लीगल एड अपनी तरफ से लगा देंगे। सबसेक्शन 4, where the court competent to try the case or commit for trial has examined any witnesses for prosecution and recorded their depositions, such depositions shall be given in evidence against such proclaimed offender on inquiry trial of the offense of which he is charged. अब जो एविडेंसेस लेते जा रहे हैं सारे उसके खिलाफ यूज हो सकते हैं, provided that if the PO is arrested and produced or appears before the court during such trial, the court may, in the interest of justice, allow him to examine any evidence which may have been taken in his absence, a recall of witnesses, re-putting up of evidences. So in case he, for whatever reason, he is produced before the court, खुद आता है या गिरफ्तार करके लाया जाता है, justice demands that he should be allowed to recall the witnesses and again क्रॉस एग्जामिन, और जो भी उसने करना है, जो भी जैसे आपके मटेरियल एविडेंसेस हैं उनके बारे में जो कुछ भी उसने पूछना है दोबारा पूछ सकता है। Subsection 5, where a trial is related to a person under this section, the deposition examination of the witnesses may, as far as practicable, be recorded by audio, video, electronic means, preferably mobile phone, and such recording shall be kept in such manner as the court may direct. प्लस हम सारा कल को ये ना हो कि सुप्रीम कोर्ट जाए वो कि जी मेरा तो राइट टू लाइफ खराब हो गया, मैं तो आ रहा था, जो भी था उसने ऐसा नहीं बोला था, हम ऑडियो वीडियो मीन से सारी रिकॉर्डिंग कर लेंगे, कल को कुछ भी 19-20 होता है हमारे पास एग्जैक्ट क्या हुआ है, वी हैव एवरीथिंग। सो देखा जाए तो इस सेक्शन में एडिक्वेट सेफगार्ड्स हैव बीन गिवन। हम नो डाउट हम प्रिजर्व करेंगे कि आप नहीं आने वाले, हम आपके बिना एक्सपार्टे चलाएंगे, पर आपको रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, आपको काफी फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से पहले भी इतना कुछ कर रहे हैं, चार पार्ट्स में हमने आपको सेफ गार्ड्स डाले, और इवन फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बाद भी हम 90 दिन वेट कर रहे हैं। एंड प्लीज रिमेंबर देयर इज नो बार कि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बाद वो फिर अरेस्ट वारंट भेज दे, ये तो मिनिमम 2 हैं 30 दिन के अंदर अंदर, कहाँ रोकता है कोर्ट को कोई के दोबारा भेज दो तुम, आज फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हो गया, सपोज 70 दिन हो गए, उसने फिर एक बार भेज दिया कि ट्राई कर लो, ये तो कोई रोक तो नहीं सकता, दैट इज द इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट। Subsection 6, if in prosecution for offences under this Sanhita, voluntary absence of the accused after the trial has commenced after subsection 1 shall not prevent continuing the trial, including the pronouncement of the judgment, even if he is arrested and produced or appears at the conclusion of such trial. So voluntary absence जहां पे हुआ सबसेक्शन 1 होने के बाद, आने के बाद गायब हो गया, उस अब बड़ा स्मार्ट है, उसको पता है आने के बाद तो मैं चुप हो जाऊंगा, फिर रुक जाएगा, तो मैं आ गया, आने के बाद गायब हो गया, मैंने फ्रेमिंग ऑफ चार्ज करा लिया, सब कुछ ठीक है, नाउ अब गायब हो गया, तो अब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बन जाता, उसको इन्होंने पहले ही यहाँ पे ब्लॉक कर दिया, कोई बात नहीं, होना है हो जाओ, ट्रायल फिर भी वैसे ही चलता रहेगा। अब हो सकता है वो कहे कि जी ठीक है मैं पहले आ गया, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज करा लिया, गायब हो गया, अब उसको पता है उसका वकील वगैरह तो है ही, तो अब वो जैसी जजमेंट आने वाली होती है वो आ जाता है कि जी मैं आ गया, स्मार्ट। तो अब वो कहते हैं कोई फर्क नहीं, एट द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल दोबारा ट्रायल नहीं होगा, तो आप बहुत स्मार्ट बन के बड़े अब वो बन रहे हो, शाने बन रहे हो कि जी मैं तो आ गया, मैंने पढ़ लिया ये बहुत डेंजरस है, मैं आ गया, आके मैंने फ्रेमिंग ऑफ चार्ज करा लिया, गायब हो गया, अब मैं चलता रहा, 4-5 साल चलता रहा, मैं गायब रहा, मेरे बिना चल रहे हैं एविडेंसेस, अब जैसे ही अब डिसीजन आने वाला, मैं आ गया, सर मैं आ गया, सर मेरे बिना हुआ है, दोबारा कराओ, दोबारा नहीं होगा। सो चाहे आप शुरू में नहीं आए, चाहे आप आने के बाद गायब हो गए, कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला आपको। सबसेक्शन 7, नो अपील शैल लाई ये कमाल की चीज है, नो अपील शैल लाई अगेंस्ट द जजमेंट under this section unless the PO presents himself before the court of appeal.
अब अपील लाई नहीं करेगी जब तक वो खुद फिजिकली प्रेजेंट नहीं होगा अपील में। तो अपील भी नहीं होगी तो मतलब अपील एडमिट ही नहीं होगी जब तक वो खुद नहीं आके एडमिट कराता। प्रोवाइडेड दैट नो अपील अगेंस्ट कन्विक्शन शैल लाई आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 years, और 3 साल के बाद तो भूल जाओ, अब अपील है ही नहीं। The state may by notification extend the provision of this section to any absconder mentioned in section 84. अब जो बाकी एब्सकॉन्डर हैं प्रोक्लेमेशन वाले, उनको अगर स्टेट चाहे तो यही लॉ उन पे अप्लाई कर सकती है। आई एम टोल्ड कि यूपी इज प्रिपेयरिंग टू अप्लाई दिस सेक्शन। मुझे बता रहा था कोई कि यूपी इज ऑलरेडी इन द प्रोसेस कि वो इसको सारे एब्सकॉन्डर्स पे अप्लाई कर रही है। So Yogi can do it. I know he may do it. So, but in any case, this is a totally different piece of legislation. जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मैंने 10 बार पढ़ा कि मैं सही पढ़ रहा हूँ क्या। एंड आई मीन दिस इज टू डेंजरस। आप मतलब आपकी सपोज कभी भी आपका कन्विक्शन हो गया और 3 साल आप फिर भी नहीं आए, अब ये कन्विक्शन फाइनल हो गया है, अब आप कहीं नहीं जा सकते। अब अब एक क्वेश्चन मेरा उठता है जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, अपील नहीं है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या एसएलपी स्पेशल लीव पिटीशन आर्टिकल 136 वुड इट बी बार्ड? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है मैं एसएलपी में तो जा ही सकता हूँ, बिकॉज दैट इज एन ओवर राइडिंग अबाउट ऑल थिंग। सो मुझे लगता है आज भी मेरे पास इसके बाद, और दूसरी बात ये अपील मना हुई है, रिवीजन मना नहीं हुई। सो रिवीजन में भी जा सकता हूँ मुझे लगता है। सो रिवीजन में भी मैं जा सकता हूँ क्योंकि इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर नहीं है, जजमेंट है ये तो। और मुझे लगता है और एसएलपी तो खैर इट कांट बी बाउंड बाय एनी लोअर लॉ। आई होप एवरीबडी इज क्लियर ऑन दिस। या उसमें ऐसा था कि देयर वाज नो प्रोसीजर एट ऑल। एक 399 था जिसके अंदर अगर किसी कोई मर्डर का केस है या कुछ है, उसके अंदर जो मैंने 33 एविडेंस के साथ कराया था 299, तो उसके अंदर हमने क्या देखा था कि अगर कोई मर्डर का केस है और विटनेस सपोज मर रहा है तो और वो एब्सकॉन्डिंग है, तो उसमें पीओ नहीं वर्ड यूज, एब्सकॉन्डिंग है बस। तो इन दैट केस जैसे कोई भी केस है और उसमें विटनेस मर अब कल को अवेलेबल नहीं होगा, हम उसका बयान ले सकते हैं। अब कल को वो मर भी जाए, नॉट विस्टैंडिंग द फैक्ट कि उसका क्रॉस नहीं हुआ था, इट कैन स्टिल बी यूज्ड अगेंस्ट द अक्यूज्ड। बस इतना प्रोविजन था पहले, पर वो तो एक विटनेस का था, ये तो पूरा जजमेंट है। हमें वो सिर्फ एक विटनेस की बात हो रही थी कि एक या दो या विटनेस। सपोज एक लड़की है जो जली हुई है, मर रही है, एंड सपोज हस्बैंड फरार हो गया, वो लड़की अपना बयान दे देती है, एंड नाउ वी टेक इट, नाउ टुमारो शी इज डेड, नाउ सिंस ही हैड absconded, that will be taken as if she had been cross examined। तो वो एक हम कह सकते हैं इसकी एक स्पीशी मान सकते हैं। बट ये तो एक पूरा ही एक आई मीन फुल फ्लेज लॉ बना दिया इन्होंने। फाइन, आई होप नाउ एवरीबडी इज क्लियर ऑन दी सेक्शंस। दिस सेक्शन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, और क्योंकि ये पहली बार आया है सीआरपीसी में, किसी भी सीआरपीसी में नहीं है, और काफी हद तक आई थिंक यूपी को दिमाग में रखते हुए बनाया गया जो जो यूपी में हुआ था। सो आई गेस दिस इज अ डिफरेंट, टोटली डिफरेंट पीस ऑफ लेजिस्लेशन। चलिए अब हम आते हैं सेक्शन 357 विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू सेक्शन 318। प्रोसीजर वेयर एक्यूज डज नॉट अंडरस्टैंड प्रोसीडिंग्स। यहां पे अनसाउंड माइंड की बात नहीं कर रहे हैं। यहां पे सपोज बंदा इलिटरेट है, डेफ है, डम्ब है, तो अब क्या होगा? लेट्स सी दिस। इफ द अक्यूज दो नॉट ऑफ एन अनसाउंड माइंड कैनॉट बी मेड टू अंडरस्टैंड द प्रोसीडिंग्स,
The court may proceed with the inquiry or trial in case of a court other than a high court if such proceedings result in conviction. The proceedings shall be forwarded to the High Court with a report of the circumstances of the case, and the High Court shall pass thereon such order as it thinks fit. अब ये जो अगेन एक एक्सेप्शन है टू द फैक्ट एक्यूज प्रेजेंट है पर उसको समझ नहीं आ रहा, तो ये भी एक्सेप्शन है। एक और एक्सेप्शन है कि एक्यूज के प्रेजेंट होने के बावजूद उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, तब भी उसका कन्विक्शन हो सकता है। So that is why it is another exception. We will take it as if the accused, though present, is not present. तब भी उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। However, अगर ये कार्रवाई, तो जैसा कि मैंने बोला डेफ एंड डम लोगों के लिए, suppose the accused is deaf and dumb and he can't understand the proceedings going on against him, or he's a foreigner, he doesn't understand the language of this country at all. In all these cases, please remember this section applies. So in all these cases, any sentence can be passed, but if he is convicted, the conviction must be reaffirmed by not less than the High Court. So दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, दो प्रिंसिपल्स अलग हो जाते हैं। पहला प्रिंसिपल कि एक्यूज के प्रेजेंस के बिना ट्रायल नहीं चल सकता, प्रेजेंस इंक्लूड्स, उसको समझ आनी चाहिए, उसका एक्सेप्शन हो गया है। दूसरा एक और पॉइंट आता है इसमें कि एक हम अभी तक जानते हैं कि सिर्फ डेथ पेनल्टी हैज टू बी रैटिफाइड बाय द हाई कोर्ट। ये एक और मामला है जहां हाई कोर्ट हैज टू रैटिफाई। ये कम से कम 10 बार इंटरव्यू में पूछा गया, कौन से ऑफेंसेस को रैटिफाई करना होता है। सब कहते हैं डेथ पेनल्टी, फिर वो कहते हैं नहीं उसके अलावा, फिर सारे क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। दिस इज दैट सेक्शन कि जहां कोई डेफ एंड डम्ब है, जिसका कन्विक्ट कर दिया आपने, यहाँ जो एक नाइजेरियन है सपोज ड्रग में पकड़ा गया, उसको कुछ ना इंग्लिश आती है ना कुछ आती, कुछ नहीं आता, अब वो यहाँ पे चल रहा है उसका केस और उसका कन्विक्शन हो जाता है। अब नेचुरली क्वेश्चन उठता है कि वो कहेगा जी मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया क्या हुआ था, तो मेरा तो रद्द करो, तो अब वो कन्विक्ट हो गया। नाउ दैट कन्विक्शन विल हैव टू बी रैटिफाइड बाय नॉट लेस देन द हाई कोर्ट, अनलेस की सेंटेंस पास करने वाला ही हाई कोर्ट है, फिर तो और रेटिफिकेशन की जरूरत नहीं है, फिर तो वो फाइनल होगा। सो याद रखना, रेटिफिकेशन बाय हाई कोर्ट दो दो जगह है, एक तो डेथ पेनल्टी का आगे देखेंगे, और एक ये है जहां पे कोई कन्विक्शन हो, कोई भी कन्विक्शन हो, चाहे ओनली फाइन की कन्विक्शन हो, तो भी हाई कोर्ट जाएगी, वहां से रेटिफाई होके आएगी। एक बार बॉम्बे हाई कोर्ट में केस आया था कि जहां दो एक्यूज थे, उनमें से एक डेफर डम था जिसको कुछ समझ नहीं आता था, और एक ठीक ठाक था। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा फिर दोनों नहीं आप हमारे पास भेजोगे, जो डेफ एंड डम वाला है उसका केस भेजोगे, जो ठीक है वो तो आप डिसाइड कर लो। तो जहां पे बाई चांस को एक्यूज जो है वो ठीक है, तो आप सारों का, ठीक वालों का नहीं भेजोगे रेटिफिकेशन के लिए। We now come to a very, very important section 319 CRPC, which now corresponds to section 358. The main question is, can the court array someone as accused on its own? क्या कोर्ट अपने आप किसी को एक्यूज्ड बना सकता है? ये क्वेश्चन मेन है। फॉर एग्जाम्पल एफआईआर का केस है तो पुलिस ने एक्यूज बना दिए, तो क्या कोर्ट अपनी तरफ से किसी को एक्यूज बना सकता है? इस क्वेश्चन का जवाब दो हिस्सों में बटा हुआ है।
एक प्री ट्रायल प्रोसेस में और एक आफ्टर ड्यूरिंग ट्रायल में। दो जगह हैं जहां पे कोर्ट किसी को एक्यूज बना सकता है, और रादर मैं कहूंगा किसी को भी एक्यूज बना सकता है। पहला स्टेप होता है प्री ट्रायल में वाइल टेकिंग कॉग्निजेंस। वाइल टेकिंग कॉग्निजेंस सेक्शन 190 सीआरपीसी में, जहां पे पुलिस ने बाई चांस नहीं बनाया और कोर्ट को लगता है इसको होना चाहिए, वो अपनी तरफ से उनको एक्यूज बना सकता है। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि एक्यूज बनाने के लिए ही मस्ट बी एक्यूज्ड इन द पुलिस रिपोर्ट। वाइल टेकिंग कॉग्निजेंस, प्लीज रिमेंबर, मैजिस्ट्रेट चाहे तो जिसको एक्यूज बनाया उसका नाम काट के उसको डिस्चार्ज कर सकता है, और जिसको नहीं बनाया उसको एक्यूज बना सकता है। इट हैज एन अनट्रैमल्ड पावर रिगार्डिंग दिस। अगर वो किसी को एक्यूज बनाता है, प्लीज रिमेंबर, कहीं प्रोविजन में नहीं लिखा दैट ही मस्ट असाइन रीजंस, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। दो ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी आप कल को, क्योंकि टेकिंग कॉग्निजेंस आप लोग करोगे, always have a speaking order. In limine orders went through the court, found him to be an accused. It's a bad order. You must give reasons that these are on based on these basic points. When I went through the police report, I believe he should also have been arraigned, and hence I am arraigning him as an accused in this section while taking cognizance. ये तो था while taking cognizance. अब आता है मेरा दूसरा हिस्सा कि ट्रायल के टाइम पे एक बार फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हो चुका है तो क्या मैं अब एक्यूज बना सकता हूं? आंसर इज यस, इन दिस सेक्शन। पर ये वाला सेक्शन कब आएगा? जब ट्रायल शुरू हो चुका है। तो मुझे जो अब मैं जिसको एक्यूज बना रहा हूं वो एविडेंसेस के थ्रू आ रहा है, मेरे पास और कोई सोर्स नहीं है। मेरे पास पहला प्रोसिक्यूशन विटनेस आया, उसने कहा जी ए बी सी ने मर्डर किया। दूसरा प्रोसिक्यूशन विटनेस आया, उसने कहा जी ए बी सी ने मर्डर किया। तीसरा आया, उसने कहा जी एबीसी ने मर्डर किया। पुलिस ने सिर्फ ए और बी को एक्यूज बनाया, सी को नहीं बनाया। क्रॉस एग्जामिन भी हो गया, वो टस से मस नहीं हुए। नाउ द कोर्ट कैन अरे सी एज एन एक्यूज्ड। सो एक चीज याद रखना, अगर आप ड्यूरिंग ट्रायल बना रहे हो तो एविडेंसेस के थ्रू आना चाहिए। यू कांट बेस इट ऑन प्रिजम्पशंस। सो यहां, सो इसका मतलब है, सपोज मुझे एफआईआर के बेस पे बनाना है तो मैं कब बनाऊंगा? 190 में, वाइल टेकिंग कॉग्निजेंस। यहां पे आउट ऑफ एविडेंसेस विच आर कमिंग बिफोर मी, उसमें से निकल रहा है ये खास ख्याल रखना है, ये फर्क है। हैविंग सेड दिस, किसी को एक्यूज बनाना इज नॉट अ सिंपल थिंग। पहला पॉइंट, अगर आपने उसको एक्यूज बनाया, वो सारों को दोबारा बुलाएगा कि जी मुझे री एग्जामिन करना, ही हैज अ राइट। इसीलिए this power should be used only if the court is absolutely sure about it. In other words, this power should be used very sparingly. मैं कोट करना चाहूंगा कुछ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स। 2014 का आया था हरदीप वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताई गई कि अगर हमने डिस्चार्ज किया है किसी को तो फिर इस सेक्शन में उसको हम बुला नहीं सकते। So if I've discharged him under 190 CRPC, तो मैं 319 CRPC में उसको नहीं बुला सकता। आई कांट से कि वो तो मैंने गलत डिस्चार्ज कर दिया, चलो 319 में आ जाओ। सो प्लीज रिमेंबर, आई कांट रिवोक discharge by using this section.
This section flows out of evidence which is adduced before the court during the course of the trial. इसका सोर्स सिर्फ और सिर्फ एविडेंसेस हैं जो ट्रायल में हमारे सामने आ रहे हैं. So one thing we must remember, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितना मैं लिखा रहा हूँ एक एक जजमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं ये सारे. That if a person was accused in the case and discharged, cognizance cannot be taken under section 319, जो अब बन गया क्या 358 सीआरपीसी, सॉरी बीएनएसएस. सब्जेक्ट सी डिस्चार्ज अगर मुझे उल्टा करना है तो क्या करना है, मैं रिवीजन में जाऊंगा 398 सीआरपीसी में, वो रिवाइजेबल है, तो मुझे रिवीजन में जाना पड़ेगा. ये नहीं कि मैं रिवीजन में 319 में आ जाऊं, ये गलत है. सो अगर मुझे डिस्चार्ज को उल्टा करना है तो ओनली वे आउट इज रिवीजन अंडर 398, नॉट अंडर दिस सेक्शन. 319 नहीं है. ऑल्सो प्लीज रिमेंबर, एक विटनेस के कहने पे नहीं आप करोगे. एक विटनेस आया, उसने कहा जी सी भी था, अच्छा अच्छा करो जी अंदर उसको. So merely because one witness has given any incriminating statement is not enough to invoke this section. The court will have to assign sufficient and cogent reasons. Sarabjit Singh versus State of Punjab, 2009 Supreme Court. So it is a statement of the prosecution witnesses which gives rise to prima facie material. Which now makes the court take cognizance. But having said all this is a discretionary power of the court, no doubt. And this is an extraordinary power. And since this is an extraordinary power, it must be used very sparingly. Only if compelling reasons exist. इस चीज को अगर मैं लेटेस्ट जजमेंट्स में आऊं, अभी 2 जजमेंट्स आए थे 2023 में इसी के ऊपर. पहला आया सुखपाल सिंह खेड़ा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2023 सुप्रीम कोर्ट, जिसमें सारी की सारी गाइडलाइंस को रिफ्रेश किया गया इस जजमेंट में. ये बहुत लैंडमार्क जजमेंट है. सुखपाल सिंह खेड़ा वर्सेस पंजाब 2023, जिसमें एक चीज बहुत, इसमें सारी चीजें सारा गाइडलाइंस क्लियर की गई, पर यह भी बताया गया कि रूटीनली ये सेक्शन यूज नहीं करना. जब तक मोर देन प्राइमा फेशियल एविडेंस ना हो, ये सेक्शन रिजॉर्ट टू नहीं करना. उसी के एकदम बाद एक और जजमेंट आया जिसमें यही चीज वापस कही गई कि बहुत स्पेरिंगली ये सेक्शन यूज करना है, जब तक बहुत कन्विंस नहीं है कोर्ट, ये सेक्शन एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट यूज नहीं करना. दूसरा जजमेंट जो आया वो आया जोहरा, JUHRA, जोहरा वर्सेस करीम 2023 सुप्रीम कोर्ट, जिसमें सुखपाल सिंह खेड़ा को रीइटरेट किया गया और उसी चीज को दोबारा बताया गया.
इसमें क्योंकि हम समन कर रहे हैं एक्यूज्ड को, इसमें कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि समन से पहले क्रॉस एग्जामिन किया जाए। दूसरा इसमें द वर्ड इज द कोर्ट, सो दिस सेक्शन अप्लाइज बोथ टू मैजिस्ट्रेट्स एंड टू सेशंस। अगर हम बेसिकली बात करें, फर्क अगर देखें 190 की और 319 की, 190 प्रोसीड्स फ्रॉम ओनली रिकॉर्ड। टेकिंग कॉग्निजेंस के टाइम पे हमारे पास सिर्फ रिकॉर्ड होता है बस। यहां पे रिकॉर्ड नहीं है, यहां पे बंदे हैं। तो बेसिक फर्क है एक। तो वहां पे जब मैं एक्यूज अरे करता हूं वो रिकॉर्ड के बेस पे करता हूं, और यहां पे जो मैं एक्यूज अरे करता हूं वो बंदों के बेस पे करता हूं। ये बेसिक फर्क मान सकते हैं हम दोनों में। क्वेश्चन ये उठता है कि चलो एक बार मैंने बुला लिया, बुलाने के बाद मुझे लगा नहीं नहीं यार ये तो इनोसेंट है, चलो मैं अपना कैंसिल कर देता हूँ ऑर्डर। नो, दिस इज नॉट एन इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर। वंस यू हैव पास दिस ऑर्डर यू कैन नॉट रिकॉल दिस ऑर्डर। इलाहाबाद में एक भाई साहब ने कर लिया ऐसा, तो उसके खिलाफ फिर स्ट्रक्चर पास हो गए थे कोर्ट के खिलाफ। ये मामला आया था इलाहाबाद में, नजीर अहमद वर्सेस उत्तर प्रदेश, 2002, इलाहाबाद। नजीर अहमद वर्सेस उत्तर प्रदेश 2002। That there is no provision for recalling or reviewing this order. This is not an interlocutory order. And lastly, once I have किसी को मैंने accused बना दिया, तो he stands at equal footing as other accused. उसको मैं जेसी में भेज सकता हूं, या जो भी करना है मैं एज अदर एक्यूज, वो ऑर्डिनरी बाकी एक्यूज के कटघरे में सेम खड़ा हो जाएगा। सॉरी, जो हो सकता है बिल्कुल होगा। सो जैसे चल रहा है तो अब उसको मैं जॉइंटर ऑफ चार्जेस कर सकता हूँ, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज उसका अलग होगा। अब देखते हैं, नाउ विद ऑल दिस बैकग्राउंड, नाउ लेट्स गो एंड सी दिस सेक्शन, वेयर इन द कोर्स ऑफ इंक्वायरी इनटू or trial of an offense, it appears from the evidence that any person not being the accused has committed any offense for which such person could be tried together with the other accused. The court may proceed against such person for the offense which he appears to have committed. Where such person is not attending the court, he may be arrested as or summoned as the circumstances of the case may require for the purpose aforesaid. Subsection 3. Any person attending the court, though not under arrest or upon a summons, may be detained by such court for the purpose of inquiry or trial for the offense which he appears to have committed. अगर वो वहीं बैठे तो हम उसको वहीं गिरफ्तार करा सकते हैं, वहां पे उसको डिटेन करके उसको बना सकते हैं। Subsection 4. Where the court proceeds under this subsection 1, the proceedings in respect of such person shall be commenced afresh. ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आया हुआ है। vis-a-vis this accused शुरू से फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से शुरू होगा। एंड विटनेस इज रीहर्ड, रिकॉल ऑफ विटनेस होगा। बी, subject to the provisions of clause A, the case may proceed as if such person had been an accused
person when the court took cognizance of the offence upon which the inquiry or trial has commenced. अब हम ऑर्डिनरी जैसा कि जॉइंडर ऑफ चार्जेस करके या जॉइंडर अक्यूज जॉइंट अक्यूज बना के इसको आगे की कार्रवाई चला सकते हैं. I hope now everybody is clear on this very important. Yeah. वो डिस्चार्ज होता है. अब कुछ नहीं. अब अगर मैंने इसको खिलाफ मैंने चार्ज फ्रेम करना है फिर तो पुलिस ने सपोज देवर 10 अक्यूज्ड, 5 के खिलाफ चालान पुटअप कर दिया, 5 के खिलाफ नहीं डाला, उनको अब डिस्चार्ज तो कर ही नहीं रहा मैं, वो तो पुलिस ने डाला ही नहीं मेरे पास, तो डिस्चार्ज की नौबत ही कहां आई. वो तो मैं while taking cognizance I may take cognizance कि नहीं है, तो डिस्चार्ज की तो नौबत तब आए जब पुलिस ने, अब ये 5 है, सपोज मैजिस्ट्रेट सोचता है ये 5 में से 4 भी नहीं है, एक ही है, अब 4 डिस्चार्ज होंगे. बिल्कुल. वो तो पुलिस ने माना ही नहीं ना, वो तो हमने पहले ही छोड़ दिया 169 में, वो तो दिखाएंगे ही नहीं, वो तो बात ही खत्म होगी. पर मैजिस्ट्रेट चाहे तो उनको बना सकता है 190 में वापस. ना ना ना. अब ट्रायल शुरू होने के बाद जब प्रोसिक्यूशन विटनेसेस शुरू होंगे, वो कहते हैं जी वो 5 भी थे, अब 309 ऑन द बेस ऑफ दीज एविडेंसेस. नॉट कि मैं सुओ मोटो ले लूंगा. तो इसमें याद रखना, सुओ मोटो कॉग्निजेंस तो है, बट ऑन द बेस ऑफ एविडेंस, ये लाइन नहीं भूलना कभी. कोई जरूरत नहीं है, मैं सुओ मोटो, मेरी पावर है, मैं जजमेंट देने वाला हूं. अब प्रोसिक्यूट डाल दे वो ठीक है, ना डाले मैं खुद ले लूंगा, इसमें मेरी सुओ मोटो पावर है. आई मीन आई कांट बी अ म्यूट स्पेक्टेटर, जो मुझे दिख रहा है. दैट इज द पॉइंट. इज एवरीबॉडी क्लियर ऑन दिस? एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और बहुत कोर्ट में इसमें लड़ाइयां भी होती हैं, बहुत कुछ होता है. तो नॉर्मली क्या होता है, गलती क्या हो जाती है, जो मैंने पहले लिखवाया आपको, कि जहां मैजिस्ट्रेट ने डिस्चार्ज कर दिया, पुलिस लाई थी, पुलिस ने कहा जी है, मैजिस्ट्रेट ने कहा नहीं है, मैंने डिस्चार्ज कर दिया. फिर जैसी फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हुआ तो मैंने कहा नहीं यार लगता है वो भी है, चल मैंने डिस्चार्ज किया था, मैं डिस्चार्ज कैंसिल, चल मैं तुझे 319 में ले रहा हूं. वो गलत है. ही डजंट हैव दैट पावर. वो 190 में ले सकता था, पर उसने खुद ही डिस्चार्ज किया है. सो जहां उसने डिस्चार्ज किया है, प्लीज मेंबर, वो खुद अपने डिस्चार्ज को कैंसिल कर सकता है, कोई बार नहीं है, बिकॉज डबल जेopardy नहीं है इसमें. बट सपोज वो नहीं करता, अब कोई अप्लाई कर देता है कि जी ये गलत डिस्चार्ज किया है, जो जिसको डिस्चार्ज किया एक्यूज को, तो विक्टिम रोएगा ही रोएगा. वो चला गया 398 में, उसने कहा जी कैंसिल करो, कोर्ट ने कैंसिल कर दिया. अब मुझे जबरदस्ती लेना पड़ेगा उसके खिलाफ कॉग्निजेंस, क्योंकि ऊपर से डंडा पड़ा है, वो अलग बात हो जाती है. आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर. सो ये चीज खास ख्याल रखना, कोर्ट की 2 प्रोविजंस होती हैं, एक ट्रायल से पहले और एक ट्रायल के बाद. दोनों का ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है. वो मेरा टोटली रिकॉर्ड पे बेस्ड है, ये मेरा टोटली एविडेंस पे बेस्ड है. बस ये बेसिक फर्क है. ओके, आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर ऑन दिस. या देखो, पहली बात यह है कि प्रोसिक्यूशन एक्यूज्ड तब बनाएगा ऑन द बेस ऑफ जो हमारे पीडब्ल्यूज आ रहे हैं. ठीक है, अब आगे बोलो. नहीं, वही मैंने कहा, देयर इज नो राइट फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन ऑन दिस इशू. तो इसीलिए इस पे आप, मैं इसको क्यों बना रहा हूं, क्यों नहीं बना रहा हूं, इस पे कोई क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं है. दैट्स व्हाट आई सेड, नो क्रॉस एग्जामिनेशन ऑन दीज मैटर्स.
रिवीजन, मैं रिवीजन में चला जाऊंगा, फिर आ जाए। फिर 319 में ये तो है नहीं कि एक बार मैंने मना कर दिया दोबारा नहीं आएगा। सपोज अभी एक एक ही पीडब्ल्यू आया था, विक्टिम आया था, मुझे लगा यार विक्टिम तो बायस्ड है, मैं नहीं लेता। अगला दो एविडेंस आए, अब मैंने ले लिया। प्रोसिक्यूशन तो पहले में ही डालती है। प्रोसिक्यूशन ने क्या किया, जैसे ही मैंने पहला पीडब्ल्यू आया, मैंने कहा जी इसके खिलाफ नहीं लिया, आप कॉग्निजेंस लो, मैंने नहीं लिया। तो अब क्या होगा कि आई विल वेट, दो और एविडेंस आए, मुझे लगा सही बात कह रहा है प्रोसिक्यूशन, अब ले लूंगा मैं। बट एक चीज याद रखना, एक बार ले लिया फिर कैंसिल नहीं कर सकता मैं, फिर तो एक्विटल तक जाएगा वो। तो वो अलाउड है। सपोज उस टाइम मैंने ऑब्जेक्ट कर दिया, मैंने रिजेक्ट कर दिया, बाद में दो एविडेंसेस और आ गए, तो ये है कि अगर मैं रिजेक्ट कर रहा हूं तो बाद में अगर एक्सेप्ट कर रहा हूं कुछ रीजन होने चाहिए, तो वो रीजन ऑर्डर है ये, क्योंकि ये जाएंगे अपील में, दैट इज द रीजन व्हाई। एफआईआर में 5 लोग हैं, 3 के खिलाफ मैंने चालान पुटअप किया, 2 को मैं कह रहा हूं इनोसेंट है, पुलिस कह रही है इनोसेंट है, खत्म कहानी। 169 पढ़ा था ना हमने, पुलिस क्या छोड़ सकती है उनको, छोड़ दिया हमने। नहीं, कोर्ट में क्यों प्रोड्यूस करूंगा। जो जो पुलिस मान ही नहीं रही, तो उसमें मैं डिस्चार्ज क्यों करूं, है ही नहीं कोई, वो तो है ही नहीं। आप लॉ के स्टूडेंट नहीं हो, आप लॉ में आओगे क्यों, वो है ही नहीं, वो रास्ता ही नहीं है। मेरे पास आने के लिए, कॉग्निजेंस लेने के लिए और डिस्चार्ज के लिए, उनको कहना चाहिए कि हाँ इसने किया है, और मैं कहता हूं नहीं किया, तब होगा डिस्चार्ज। जब वो ही कह रहे हैं नहीं है, तो रास्ता ही नहीं खुला, दरवाजा ही बंद है। ये है कि दरवाजा मैं खोल सकता हूं, अपने आप नहीं खुलेगा। ओके, इज एवरीबडी नाउ क्लियर ऑन दिस प्लीज। ये टेक्निकलिटीज जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते ना, ये चीजें नहीं पता चलती। और खासकर जब आप कोर्ट में जाते हो और जब ये लड़ाइयाँ होती हैं, बिकॉज बहुत बार मैंने देखा है, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू द esteemed courts, they take wrong decisions on 319। मैंने बहुत सारे गलत डिसीजन देखे, और इसी एक केस में मेरे और बहुत बहस हो गई थी, फिर उसने अल्टीमेटली थ्रेटन किया था, आई एम गोइंग टू होल्ड यू फॉर कंटेम्प्ट, तो कर ले जो करना है। तो वो क्योंकि उनको समझ ही नहीं आती, वो जैसे ही शुरू हुआ, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हुआ, प्रोसिक्यूशन ने कहा जी ये भी होने चाहिए सर, ये भी है, वो कहते हैं हाँ सही कह रहे हैं, चलो जी 319। अरे क्या एविडेंस है तुम्हारे पास, रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड पे आपने लेना है तो आप 190 में जाके लो, या उसमें ले लेते। तो अब आपने नहीं लिया, तो आपने अपना जुडिशियल माइंड पहले सुलाया हुआ था, तो हमारी क्या गलती है। मैंने यही चीज बोली थी, मैं कहा सर योर जुडिशियल माइंड वाज स्लीपिंग, व्हाट डू आई डू, इट्स नॉट माय मिस्टेक, कहता I'm going to hold you for contempt। मैं कहा no, I'm only using a legal jargon। now अब अगर उसको लगाना है तो let the evidence come, अब वो उसमें से बोले कि इसमें से आ रहा है, तो आपने चार्ज फ्रेम करते ही कहा नहीं 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 वो भी हैं वो भी हैं, उनको कहां से ला, कहां से आ रहा है आपके पास, रिकॉर्ड ही है ना। तो यहां तो आप कहते हैं कि मैंने 190 में ले लिया, तो ठीक है आप ले लो, यू कांट टेक कॉग्निजेंस अंडर 319 ऑन रिकॉर्ड जो पुराना है। तभी तो मैं कह रहा हूं मेरी तो लड़ाइयां हो चुकी हैं। चलो एनीवेज, सो आई होप ऑल यू वोंट मेक दिस मिस्टेक, प्लीज डोंट मेक दिस मिस्टेक टुमारो, बिकॉज लोअर जजेस कई ये मिस्टेक करते हैं, दैट वो कभी भी मुंह उठा के कह देते हैं नहीं नहीं मुझे लग रहा है ये है, चल अंदर आ जा, तो चल अंदर आ जा ऐसे नहीं होता है। आई मीन आइदर यू डू इट बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, अगर आपने फ्रेमिंग ऑफ चार्ज में नहीं किया, बिकॉज इट हैज टू बी अ वेल रीजन्ड ऑर्डर, एंड दैट इज व्हाई I would advise all my legal fraternity friends, खासकर जुडिशियल ऑफिसर्स, to go through these judgments, खासकर खेड़ा वाली जजमेंट, जो मैं कह रहा हूं सारा उसमें लिखा हुआ है।
चलिए, नाउ दैट वी आर क्लियर ऑन दिस सेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, ये सारी बड़े इंपॉर्टेंट, एक एक जितने जनरल प्रोविजंस हैं एक एक बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं, जो पुराना सेक्शन 320 था और अब बन गया है 359, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। जब क्रिमिनल लॉ शुरू हुआ था, एक्चुअली देयर वाज नो क्रिमिनल लॉ, इट वाज ऑल सिविल लॉ। सिविल लॉ जो है वो 8वीं सेंचुरी के आसपास, क्रिमिनल लॉ केम इनटू बीइंग। पहले क्रिमिनल लॉ नाम की चीज नहीं होती थी, बिकॉज एवरीथिंग कुड बी सेटल्ड बाय ब्लड मनी, एवरीथिंग वाज बेस्ड ऑन कंपनसेशन। ये तो बाद में रियलाइज हुआ कि एवरीथिंग कांट बी बेस्ड ऑन कंपनसेशन, एंड प्लस अ डिटरेंट इफेक्ट मस्ट बी देयर फॉर द पब्लिक। फिर वो थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट्स आई, हम उसमें नहीं जा रहे। अभी इसमें क्या होता है कि आज भी कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जो कायदे से सिविल नेचर के हैं, पर हमने उनको अपग्रेड कर दिया ऑफेंस में। तो हमारे दो तरह के हम ऑफेंसेस मान सकते हैं जिनमें आज भी ब्लड मनी दी जा सकती है। एक जो सिविल नेचर के हैं, पर कहीं ना कहीं वो ऑफेंस बन गए, और दूसरा बहुत ट्रिवियल मामले हैं, बहुत छोटे मामले हैं। मैंने आपको चांटा मार दिया, आपका रास्ता रोक दिया, उसमें पब्लिक एट लार्ज इन्वॉल्व नहीं होती। सो बेसिकली ये दो टाइप के ऑफेंसेस जहां मोस्टली पब्लिक इन्वॉल्व नहीं होती, जिनका पब्लिक पे असर नहीं होता, ए दोज विच आर ऑफ सिविल नेचर, एंड बी दोज विच आर मोर और लेस ट्रिवियल इन नेचर। इनको हम आज भी कंपनसेट करने की इजाजत देंगे, आज भी हम इनको सिविल लॉ की तरह ट्रीट करेंगे। इनकी पनिशमेंट्स बहुत कम है, और अगर कहीं ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल बिगेमी 7 साल है, तो वो प्योरली सिविल है, दो लोग हस्बैंड वाइफ की बात है, उसमें तीसरे का कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए प्लीज रिमेंबर, कंपाउंडेबल, इनको हमने कंपाउंडेबल बनाया है, यानी कि इनका कंपनसेशन दिया जा सकता है। जब हम ये डिवाइड कर रहे थे कि ठीक है कौन से ऑफेंसेस होने चाहिए जो जो जिनका कंपनसेशन पे करके एक्विटल लिया जा सकता है, कंपनसेशन देके एक्विटल लिया जा सकता है, इट अमाउंट्स टू एक्विटल, उनको हम कहते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, कंपनसेटेबल ऑफेंसेस अगर ऐसा कोई वर्ड है, जिनको हम कंपनसेशन से ठीक कर सकते हैं। अब इन ऑफेंसेस में भी हमने फिर दो टाइप्स के डिवाइड कर दिया। पहला हमने पार्ट डिवाइड किया जहां पे हम बिना कोर्ट की मर्जी से आपस में कंपनसेट कर सकते हैं, जो बिल्कुल ही माइनर ऑफेंसेस है, जो प्योरली सिविल नेचर की है, बट उनको कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर ने ऑफेंस का दर्जा दिया हुआ है। और दूसरे थोड़े ज्यादा सीरियस टाइप है, उनको हम आउट ऑफ कोर्ट सिर्फ आपको अलाउ नहीं कर सकते, वहां पे कोर्ट की मर्जी होगी तो अलाउ करेगा। तो इसका मतलब है कंपाउंडेबल भी दो तरह के हो गए, जो एक तो बिल्कुल माइनर है, जो आप आउट ऑफ कोर्ट अपने आप सेटलमेंट कर लो, आप सेटलमेंट कर लो, सेटलमेंट करके अपना सेटलमेंट लिखित में कोर्ट में दे दो, कोर्ट विल एक्सेप्ट इट एंड पास एक्विटल। जहां कोर्ट आपको ये नहीं कह सकता तूने पैसा कम क्यों लिया, तूने ज्यादा क्यों लिया, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, जो हम कह रहे हैं बस उसको साइन करो, खत्म करो, एक्विटल हो गया।
तो दीज आर कंपाउंडेबल विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट। और थोड़े ज्यादा सीरियस वाले, दे आर कंपाउंडेबल विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। यानी कि उसमें अगर कोर्ट परमिशन ना दे तो कंपाउंडिंग नहीं हो सकती। नाउ एक चीज और इंपॉर्टेंट बनती है यहां पे, हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस जो होते हैं, अगर हम शेड्यूल 1 देखें, उसमें होता है पहले नेम ऑफ द ऑफेंस, सेक्शन ऑफ द ऑफेंस, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑफेंस होता है उसमें सारा। उसके बाद होता है कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल नॉन बेलेबल, एंड विच कोर्ट ट्रायबल। कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल नहीं होता। उसके लिए हमारे पास सिर्फ एक सोर्स है देखने के लिए कि ये कंपाउंडेबल है कि नहीं, वो है ये वाला सेक्शन। इसी में टेबल में दिया गया है कौन से ऑफेंसेस कंपाउंडेबल हैं और कौन से नहीं है। इसी में यह भी दिया गया है कौन से ऑफेंसेस बिना कोर्ट के परमिशन के ट्रायबल कंपाउंडेबल हैं और कौन से विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट कंपाउंडेबल है। नाउ एक बार हमने कंपाउंड कर दिया, चाहे विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट और विदाउट द परमिशन, उसका इफेक्ट होता है एक्विटल। द इफेक्ट इज एक्विटल, यानी कि उस पर डबल जोपार्डी लगेगा। एक बार कंपाउंडिंग हो गई, अब वो एक्विटल माना जाएगा। दूसरी बात, कंपाउंडिंग जो है वो उसके उसके बेनिफिट्स क्या है। पहला पॉइंट ये है कि इट इज ऑलवेज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट दैट देयर मस्ट बी एन एंड टू लिटिगेशन। इट हेसन्स अप द प्रोसेसेस, बहुत जल्दी जल्दी इसमें खत्म हो जाते हैं मामले। और दूसरा, कहीं ना कहीं जो हमारा विक्टिमोलॉजी का कंसेप्ट है, कंपनसेशन टू द विक्टिम, वो भी पूरा हो जाता है। इसमें सिर्फ सजा नहीं है, इसमें कंपनसेशन है। एंड लास्ट बात, जो ऑफेंसेस टेबल में दिए गए हैं वो ही कंपाउंडेबल हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट cannot use their inherent powers to compound a non-compoundable offense. बहुत सारे हाई कोर्ट्स ने, फॉर एग्जाम्पल क्रूअल्टी इज अ नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। हस्बैंड वाइफ का झगड़ा है, दोनों बाद में पहुंच गए, उन्होंने कहा जी हम आपस में राजी हैं, हमारा कंपाउंड कर दो। तो बहुत सारे हाई कोर्ट्स ने कंपाउंडिंग कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कहां लिखा है। इनफैक्ट लास्ट सब सेक्शन इसका कहता है सिर्फ वही ऑफेंसेस कंपाउंडेबल हैं जो यहां दिए गए हैं। जब क्लियर डायरेक्शन हो लेजिस्लेचर का, आप इनहेरेंट पावर यूज नहीं कर सकते। चाहे एक बार गलती से सुप्रीम कोर्ट ने भी कंपाउंड कर दिया था, एक अटेम्प्ट टू मर्डर का केस, बट दैट वाज एन एक्सेप्शन एंड दे वेरी क्लियरली सेड लेटर ऑन, लेट इट नॉट बी टेकन एज एज एन ऑर्बिटर डिक्टा और समथिंग जो हम आपको फॉलो करना है। नाउ विद दिस बैकग्राउंड चलिए अब देखते हैं व्हाट इज दिस सेक्शन। The offenses punishable under the sections of BNS. So एक चीज याद रखना, स्पेशल एंड लोकल लॉज नहीं दिए हुए, ओनली BNS specified in the first two columns of the table. Next following may be compounded by the persons mentioned. कौन से ऑफेंसेस हैं सिर्फ BNS के हैं, कौन से सेक्शंस हैं वो हम बता रहे हैं, कौन कंपाउंड कर सकता है वो भी बता रहे हैं आपको। इस टेबल में
there are two parts. The first part, वो आप देख लेना कौन से सेक्शंस हैं, छोटे छोटे सेक्शंस हैं सर, dishonestly receiving stolen property, criminal trespass, house trespass, dishonest misappropriation of property, assault, wrongfully confining for 3 days, वगैरह वगैरह. All these are compounded because basically ये दो लोगों के बीच का मामला है. Voluntarily causing hurt on provocation, even grievous hurt on grave and sudden provocation. All these are compoundable. ये तो कंपाउंडेबल है विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट. बट जब हम इसके बाद आते हैं, द ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर बीएनएस स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट टू कॉलम्स ऑफ द टेबल नेक्स्ट फॉलोइंग मे विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट बिफोर विच एनी प्रोसिक्यूशन इज पेंडिंग. यानी कोर्ट कॉग्निजेंस ले चुका है, प्रोसिक्यूशन पेंडिंग है, be compounded by the persons mentioned in the third. So अब शुरू होता है टेबल. Modesty of a woman, words 509 जो था हमारा. Marrying again during यानी bigamy, causing miscarriage, voluntarily causing grievous hurt, criminal breach of trust, वगैरह वगैरह. ये लाइन ये थोड़ी छोटी है, इनफैक्ट विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट लंबी है लिस्ट. ये जो है विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट कंपाउंडिंग हो सकती है. आई विल ऑलवेज एडवाइस कि इसको बार बार पढ़ना और इनकी एक छोटी लिस्ट अपने अपने वर्ड्स में एक एक वर्ड का ऑफेंस हाथ से लिख लेना ताकि हमेशा याद होने चाहिए. नॉट ओनली फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कल को कभी भी आप कोर्ट में जाते हो तो आपको पता है ये कंपाउंडेबल है, तो कभी ना कभी हम यूज, बिकॉज वी आर ऑलवेज डिफेंस काउंसिल्स, तो हम हमेशा कह सकते हैं कि सर इतना आप क्या शोर मचा रहे हो, कंपाउंडेबल ऑफेंस है सर, देख लो. फिर 99% मैंने नोट किया जब मैं कोर्ट में जाता था, वो कहते हैं कहाँ कंपाउंडेबल है, तो मैं लेके चलता था वो छोटी सी पॉकेट वाली मैनुअल, सर ये देखो. अरे अच्छा, मैं अच्छा चल, वो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज कम कर देते या उनका रवैया चेंज हो जाता है. जैसे आप कहते हो ये तो कंपाउंडेबल ऑफेंस है सर. अब आप सोचो वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट इज कंपाउंडेबल, और वो कह रहे अच्छा उसके हाथ पैर काट दिए, ये कर दिया वो कर दिया. सर मानते हैं बहुत बुरा हुआ, पर सर कंपाउंडेबल ऑफेंस है. फिर वो एकदम कहते हैं कि नहीं नहीं कैसे कंपाउंडेबल है, तो ऑलवेज कैरी योर पॉकेट मैनुअल, उन दिखा दो खोल के, ये रहा सर. तो ये कहा कई बार ये काम आती हैं चीजें, बिकॉज 99% डू नॉट नो कौन से ऑफेंसेस कंपाउंडेबल है. मैं कोई इतनी मेहनत नहीं करता जज बनने के बाद, तो बहुत यूजफुल हो जाती हैं चीजें जब हम प्रैक्टिस करते हैं. क्योंकि फिर हम शो कर देते हैं कि ये तो छोटा सा मामला है सर, इतना क्या, बेल दे दो, बेलेबल है. तो कई इनमें नॉन बेलेबल भी होते हैं, तो बेल मिल जाती है इस पॉइंट पे कि सर मानते हैं चलो है सर, पर ये कंपाउंडेबल मामला है सर, कंपाउंडिंग हो जाएगी कल को, क्या पता, बेल तो दे ही दो कम से कम. तो बेल के लिए ये एक बहुत अच्छा ग्राउंड होता है कि कंपाउंडेबल है. तो इसको यूज इट व्हेन यू टुमारो व्हेन यू गो टू कोर्ट्स. चलिए. नहीं उसमें ये है ना कि मैरिड वुमन जहां पे हम उसको लेके जा रहे हैं, अब डिपेंड करेगा कि आप किन हालात में उसको लेके गए. सी जहां पे इट इज एंटाइसिंग तब तो उसकी मर्जी है, पर जहां आप उसको बेवकूफ बना के ले गए तो फिर मैरिड वुमन आ जाएगी बीच में. एक तो है जहां वो अपनी मर्जी से गए एंटाइसिंग, एक होता है यू मेक अ फूल ऑफ हर, फ्रॉड, वहां पे हो जाता है. सो बेसिकली इट शुड बी और, क्योंकि उसमें हो रहा है, और दोनों की भी ले लो तो भी अच्छा है, क्योंकि नेचुरली वाइफ तो वापस ही गई है, अब दोनों इकट्ठे हो जाएंगे. सो दैट इज वाई कई एंड भी चल सकता है यहाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. क्यों खत्म हो गया ना. चलिए हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, विल टेक इट अप फ्रॉम हियर. थैंक यू एवरीबॉडी, विल मीट इन 10 minutes.